Vijay Mallya. The information that we are getting is that Prime Minister Narendra Modi has been bringing up the extradition of fugitive Vijay Mallya as well as Nirav Modi in all the India-UK trade-related meetings. The British have been complaining that the moment we have a meeting, the first question Prime Minister Narendra Modi asks is where are Vijay Mallya and Nirav Modi? This information has been revealed by Harish Salve in an interview. Amit Kumar joins us for more details. Amit, this flies in the face of the opposition's repeated allegations where they mention that India is not doing enough to bring back fugitives Mallya and Nirav Modi. देखिए, ये हमेशा आरोप लगता रहा है मोदी सरकार पर और खुद प्रधानमंत्री मोदी पर कि जो भगोड़े यहाँ से भागे हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये एक मजबूरी होती है कि जब आप दूसरे देश में वो भाग जाता है तो उसके भी एक नियम कानून है। लेकिन ये दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब भी वहाँ जाते हैं तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि नीरव मोदी कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है और उनको लेकर जो कार्रवाई होनी चाहिए क्यों नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि एक तरफ आप ट्रेड पार्टनर के तौर पर काम करेंगे और दूसरी तरफ जो भगोड़े होंगे देश को उनको पनाह देंगे, ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। और यही चीज हरीश साल्वे ने अपने इंटरव्यू में भी कहा है। और सबसे बड़ी बात कि इस बात को लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि जो भगोड़े हैं, जो यहाँ के जो अपराधी हैं, जो यहाँ पर घोटाला किए हैं, पैसे लेकर गए हैं, उनको कैसे भारत में लाया जाता है कि भारत के कानून के तहत उनको सजा दिलाई जाए। और इस बात को लेकर भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी का नतीजा है कि प्रधानमंत्री अपने हर दौरे में जब भी वहाँ पर ब्रिटिश किसी बड़े अधिकारी से मिलते हैं, प्रधानमंत्री से मिलते हैं, तो ये सवाल उनके जहन में सबसे पहला होता है कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग कहाँ हैं और उनके खिलाफ एक्शन क्या हो रहा है। तो ये दिखाता है, ये बताता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इसको लेकर कितना कंसर्न है और वो चाहते हैं कि इसको लेकर एक्शन लिया जाए। और सरकार जो है न सिर्फ भारत सरकार की तरफ से प्रयास है और इसको लेकर दबाव भी बनाया जा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर में। जी, बने रहिए हमारे साथ अमित कुमार। कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है इन फ्यूजिटिव्स को वापस लाने में, इनके खिलाफ कार्यवाही करने में, और यही सेंटिमेंट है दैट हरीश साल्वे हैड आल्सो expressed while speaking with Navika Kumar. Listen in. The Nirav Modis, the Mehul Choksis of the world. Are we expected to hear a breakthrough very soon? You will in a couple of weeks. There is already I think it's in public domain. There is a legal proceeding going on. Yes. For recovery of assets. No, that's been going on. So Government of India is taking proactive steps. The hearings in court. But will we ever get these scamsters back? So the problem with extradition is that the CPS has done it. Nirav Modi is lost up to the Court of Appeal. He is in the Wandsworth prison. They are not giving him, not even giving him bail. He is being detained in prison. All that is needed is the secretary, Home Secretary's signature and then a formal order for deportation. And that can happen anytime, but then every country plays a political game. What they can expect. We want some, yeah, what do we get in return? He's hanging by a thread. And when people say government... And what would UK want in return? I can tell you something. People in UK, I'm on the Indo-UK Business Advisory Council on the UK side. I advise the UK government on certain things relating to India, including the FTA, etc. And they always complain. They said, you know, our political... Believe me, we have inherited a political system from them. They have their problems. But on the trade side, everybody complains. The moment we have a meeting, we know the first question your Prime Minister is going to say is, where's Vijay Mallya? Where's Nirav Modi? And people here say, the government doesn't want them back. The British say, you're putting too much emphasis on something which is not that important. He says, no, it's very important for us. Don't England, no, not political. He has told the British government, you can't be a trade partner and a home for fugitives. It's been that strongly put. Amit Malviya of the BJP is now joining us. Sir, Harish Salve completely blunting
Okay, Amit, Harish Salve, they're completely blunting the opposition attack कि भारत सरकार चाहती ही नहीं है नीरव मोदी और माल्या जैसे फ्यूजिटिव्स को वापस लाना। वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा ये सवाल उठाया जाता है कि जब आप बातचीत करने के लिए जाते हैं तो यूके वाले भी परेशान हो जाते हैं कि आप कितनी बार पूछेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली दे आर वेटिंग फॉर वॉट इज इन दिस फॉर देम। सो वॉट काइंड ऑफ probably, if I can call it barter for the lack of a better word, is being looked at? देखिए, सबसे बड़ी कि ये खुलासा जो है, इस तरह की जो बातें सबसे पहले टाइम्स नाउ पे कही गई और हरीश साल्वे ने नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू में ये बातों को रखा किस तरह से प्रधानमंत्री कितने कंसर्न है। प्रधानमंत्री किस तरह से जब भी मिलते हैं किसी ब्रिटिश अधिकारी से, प्रधानमंत्री से या किसी भी डेलीगेट से मिलते हैं तो उनका सवाल एक ही होता है कि नीरव मोदी कहाँ है, विजय माल्या कहाँ है, और इस बात को लेकर उनके तरफ से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ये दिखाता है कि भले ही लोग आरोप लगाएं, 10 तरह के पॉलिटिकली आरोप लग सकते हैं, लेकिन ये दिखाता है कि भारत सरकार का कंसर्न, नरेंद्र मोदी का कंसर्न कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर वो खुद कितने एक्टिव है। क्योंकि ये जो अगर आप बातें एक्स्ट्रेडिशन की बात करें तो दूसरे देश के लॉ को फॉलो करना पड़ता है, आप आपके हिसाब से आप नहीं आ सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश जो है वो दिखाता है। हरीश साल्वे ने ये बात नाविका कुमार से बातचीत में बहुत साफ तौर पर कहा कि कैसे वहां के जो लोग चाहे बिजनेस से जुड़े हुए जब वो मिलते हैं तो ये शिकायत करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का पहला सवाल नीरव मोदी को लेकर होता है, विजय माल्या को लेकर होता है। तो ये कंसर्न दिखाता है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी खुद कितना प्रयास कर रहे हैं, किस तरह से दबाव बना रहे हैं। और उन्होंने कहा भी कि बहुत जल्द नीरव मोदी भारत आएगा क्योंकि वो सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, होम सेक्रेटरी के वहां पर जो सिग्नेचर बचा है। तो ये प्रयास जो है लगातार है और ये सबसे पहले टाइम्स नाउ ने आपको ये खुलासा भी किया, नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू में हरीश साल्वे ने बताया भी है। तो ये चीजें दिखाती है कि भारत सरकार, नरेंद्र मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भारत से जो चीट किए हुए लोग हैं, जो भगोड़े हैं, वो भारत आएंगे। वक्त भले लग सकता है लेकिन उसको छोड़ा नहीं जाएगा और इसको लेकर खुद पर्सनल लेवल पर, आप कह सकते हैं कि पर्सनल लेवल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बात करते हैं जब भी, जहां भी, जिस भी प्लेटफॉर्म पर उस एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की होती है। तो ये होना है, ये होगा। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री सभाओं में भी करते हैं, लोगों के बीच भी करते हैं, और जब दूसरे देश जाते हैं, जैसे ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन जाकर उन्होंने इस बात को कहा भी कि हर हाल में नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे जो भगोड़े हैं उनको भारत लाना होगा। और ये बड़ी बात मुझे लगता है। प्रोसेस कोई सीधी नहीं रहती है, ये सबको पता है। आप एक बार जब किसी विदेशी लीगल सिस्टम को ले आते हैं पिक्चर में